بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں میں سے کم عقل لوگ ضرور کہیں گے جس قبلے کی طرف یہ رخ کرتے تھے اس سے انہیں کس چیز نے پھیر دیا۔ اے رسول، ان سے کہہ دیجئے مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست کی ہدایت فرماتا ہے، اور اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنا دیا تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو اور رسول تم پر گواہ رہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے جس قبلے کی طرف رخ کرتے تھے اسے ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا تاکہ ہم رسول کی اتباع کرنے والوں کو الٹا پھر جانے والوں سے پہچان لیں، اور یہ حکم اگرچہ سخت دشوار تھا مگر اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ لوگوں کے لیے اس میں کوئی دشواری نہیں، اور اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ تو لوگوں کے حق میں یقیناً بڑا مہربان رحیم ہے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بار بار آسمان کی طرف منہ کرتے دیکھ رہے ہیں، سو اب ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیتے ہیں جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف کریں، اور تم لوگ جہاں کہیں بھی ہو اس کی طرف رخ کرو، اور اہل کتاب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق پر مبنی فیصلہ ہے، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل کتاب کے سامنے ہر قسم کی نشانی لے آئیں پھر بھی یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے قبلے کی اتباع کرنے والے ہیں، اور نہ ان میں سے کوئی دوسرے کے قبلے کی اتباع کرنے پر تیار ہے۔ اور پھر بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو علم آ چکا ہے اس کے بعد بھی اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادتی کرنے والوں میں ہوں گے۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس رسول کو اسی طرح پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور ان میں سے ایک گروہ جان بوجھ کر حق کو چھپا رہا ہے۔ حق صرف وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کی طرف سے ہو، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شک کو تردد کرنے والوں میں سے ہرگز نہ ہوں، اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے۔ بس تم لوگ نیکیوں کی طرف سبقت کرو، تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ ایک دن تم سب کو حاضر کرے گا، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں کہیں بھی نکلیں اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف موڑیں، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کا برحق فیصلہ ہے، اور اللہ تم لوگوں کے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں کہیں سے بھی نکلیں اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف موڑیں، اور تم لوگ جہاں کہیں بھی ہو اپنا رخ اسی کعبے کی طرف کرو تاکہ ان میں سے ظالموں کے علاوہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے، لہذا تم ان سے نہیں صرف مجھ ہی سے ڈرو تاکہ میں تم پر اپنی نعمتیں پوری کروں اور شاید تم ہدایت پاؤ۔ جیسے ہم نے تمہارے درمیان خود تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتا ہے اور تمہیں پاکیزہ کرتا ہے، اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور تمہیں ان چیزوں کی تعلیم دیتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ لہذا تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ اے ایمان والو،
सब्र और नमाज से मदद लो। अल्लाह यकीनन सब्र करने वालों के साथ है। और जो लोग राह खुदा में मारे जाते हैं उन्हें मुर्दा ना कहो, बल्कि वो जिंदा हैं, मगर तुम उनकी जिंदगी का इदराक नहीं रखते। और हम तुम्हें कुछ खौफ, भूख और जानो माल और समरात के नुकसानात से जरूर आजमाएंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दीजिए जो मुसीबत में मुब्तला होने की सूरत में कहते हैं, हम तो अल्लाह ही के हैं और हमें उसी की तरफ पलट कर जाना है। ये वो लोग हैं जिन पर उनके रब की तरफ से दुरूद है और रहमत भी, और यही लोग हिदायत याफ्ता हैं। सफा और मरवा यकीनन अल्लाह के शायर में से हैं। बस जो बैतुल्लाह का हज या उम्रा करे उसके लिए इन दोनों का चक्कर लगाने में कोई हरज नहीं। और जो अपनी खुशी से कोई नेकी करता है तो यकीनन अल्लाह कदर करने वाला, खूब जानने वाला है। जो लोग हमारी नाजिल करदा वाज़े निशानियों और हिदायत को छुपाते हैं, बावजूद के हम किताब में उन्हें लोगों के लिए खोल कर बयान कर चुके हैं, तो ऐसे लोगों पर अल्लाह और दीगर लानत करने वाले सब लानत करते हैं। अलबत्ता जो लोग तौबा कर लें और अपनी इस्लाह कर लें और जो छुपाते थे उसे बयान कर दे, तो मैं उनकी तौबा कबूल करूंगा। और मैं तो बड़ा तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला हूं। जो लोग कुफ्र इख्तियार करते हैं और उसी हालत में मर जाते हैं, उन पर अल्लाह, फरिश्तों और तमाम लोगों की लानत है। वो उसमें हमेशा रहेंगे, ना उनके अजाब में तखफीफ होगी और ना ही उन्हें मोहलत दी जाएगी। और तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है, उस रहमान और रहीम के सिवा कोई माबूद नहीं। यकीनन आसमानों और जमीन की खिलकत में, रात और दिन के आने जाने में, उन कश्तियों में जो इंसानों के लिए मुफीद चीजें लेकर समंदरों में चलती हैं, और उस पानी में जिसे अल्लाह ने आसमानों से बरसाया, फिर उस पानी से जमीन को मुर्दा होने के बाद दोबारा जिंदगी बख्शी, और उसमें हर किस्म के जानदारों को फैलाया, और हवाओं की गर्दिश में और उन बादलों में जो आसमान और जमीन के दरमियान मुसख्खर है, अक्ल से काम लेने वालों के लिए निशानियां हैं। और लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो अल्लाह के सिवा दूसरों को उसका मद्दे मुकाबिल करार देते हैं, और उनसे ऐसी मोहब्बत करते हैं जैसी मोहब्बत अल्लाह से रखनी चाहिए। और ईमान वाले तो सबसे ज्यादा अल्लाह ही से मोहब्बत करते हैं। और काश ये जालिम लोग अजाब का मुशाहिदा कर लेने के बाद जो कुछ समझने वाले हैं अब समझ लेते कि सारी ताकतें सिर्फ अल्लाह ही की हैं, और ये कि अल्लाह सजा देने में निहायत शदीद है। उस वक्त का ख्याल करो जब रहनुमा अपने पैरोकारों से इजहार बरात करेंगे और अजाब का मुशाहिदा करेंगे, और तमाम ताल्लुकात टूट कर रह जाएंगे। और दुनिया में जो लोग उनके पैरोकार थे वो कहेंगे, काश हमें एक बार दुनिया में वापस जाने का मौका मिल जाता तो हम भी इनसे इसी तरह इजहार बरात करते जिस तरह ये आज हमसे इजहार बरात कर रहे हैं। इस तरह अल्लाह उनके आमाल को सरापा हसरत बनाकर दिखाएगा और वो दोज़ख से निकल नहीं पाएंगे। लोगों, जमीन में जो हलाल और पाकीज़ा चीजें हैं उन्हें खाओ और शैतान के नक्शे कदम पर ना चलो। यकीनन वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। वो तुम्हें बुराई और बेहयाई का ही हुक्म देता है, और इस बात का कि तुम अल्लाह की तरफ वो बातें मंसूब करो जिनके मुतालिक तुम्हें इल्म नहीं है। और जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह के नाजिल करदा ahकाम की पैरवी करो, तो वो जवाब देते हैं कि हम तो उस तरीके की पैरवी करेंगे
जिस पर हमने अपने आबाओ अजदाद को पाया है, ख्वाह उनके आबाओ अजदाद ने ना कुछ अक्ल से काम लिया हो और ना हिदायत हासिल की हो। और उन काफिरों की हालत बिल्कुल उस शख्स की सी है जो ऐसे जानवर को पुकारे जो बुलाने और पुकारने के सिवा कुछ ना सुन सके। ये बहरे, गूंगे, अंधे हैं। बस इसी वजह से ये लोग अक्ल से भी आरी हैं। ए ईमान वालो, अगर तुम सिर्फ अल्लाह की बंदगी करने वाले हो तो हमारी अता करदा पाक रोजी खाओ और अल्लाह का शुक्र करो। यकीनन उसी ने तुम पर मुर्दार, खून, सुअर का गोश्त और गैरुल्लाह के नाम का ज़बिया हराम करार दिया। फिर जो शख्स मजबूरी की हालत में हो और वो बगावत करने और जरूरत से तजावुज करने वाला ना हो तो उस पर कुछ गुनाह नहीं। बेशक अल्लाह बड़ा बख्शने वाला, रहम करने वाला है। जो लोग अल्लाह की नाजिल करदा किताब को छुपाते हैं और उसके इवज में हकीर कीमत हासिल करते हैं, ये लोग बस अपने पेट आतिश से भर रहे हैं। और अल्लाह कयामत के दिन ऐसे लोगों से बात नहीं करेगा और ना उन्हें पाक करेगा और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। ये वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत के इवज जलालत और मगफिरत के बदले अजाब खरीद लिया है। ताज्जुब की बात है कि आतिश जहन्नुम के अजाब के लिए इनमें कितनी बर्दाश्त है। ये सजा इस वजह से है कि अल्लाह ने किताब तो हक के मुताबिक नाजिल की थी और जिन लोगों ने किताब के बारे में इख्तलाफ किया, यकीनन वो दूर दराज के झगड़े में पड़े हुए हैं। नेकी ये नहीं है कि तुम अपना रुख मशरिक और मगरिब की तरफ फेर लो, बल्कि नेकी तो ये है कि जो कोई अल्लाह, रोज़े क़यामत, फरिश्तों, किताब और नबियों पर ईमान लाए और अपना पसंदीदा माल करीबी रिश्तेदारों, यतीमों, मिस्कीनों, मुसाफिरों और साइलों पर और गुलामों की रिहाई पर खर्च करे और नमाज कायम करे और ज़कात अदा करे, नीज जब मुआयदा करें तो उसे पूरा करने वाले हों और तंगदस्ती और मुसीबत के वक्त और मैदान जंग में सब्र करने वाले हों। यही लोग सच्चे हैं और यही लोग मुत्तकी हैं। ए ईमान वालो, तुम पर मख्तूलीन के बारे में क़िसास का हुक्म लिख दिया गया है। आजाद के बदले आजाद, गुलाम के बदले गुलाम और औरत के बदले औरत। हां, अगर मकतूल के भाई की तरफ से कातिल को क़िसास की कुछ छूट मिल जाए तो अच्छे पैराए में दियत का मुतालिबा किया जाए और कातिल को चाहिए कि वो हुस्न खूबी के साथ उसे अदा करे। ये तुम्हारे रब की तरफ से एक किस्म की तखफीफ और मेहरबानी है। बस जो इसके बाद भी ज्यादती करेगा उसके लिए दर्दनाक अजाब है। और ए अक्ल वालो, तुम्हारे लिए क़िसास में जिंदगी है, उम्मीद है तुम इस कानून के सबब बचते रहोगे। तुम्हारे लिए ये लिख दिया गया है कि जब तुम में से किसी की मौत का वक्त आए और वो कुछ माल छोड़े जा रहा हो तो उसे चाहिए कि वालिदैन और करीबी रिश्तेदारों के लिए मुनासिब तौर पर वसीयत करे। मुत्तकी लोगों पर ये एक हक है। जो वसीयत को सुन लेने के बाद उसे बदल डाले तो उसका गुनाह उन बदलने वालों पर होगा। अल्लाह यकीनन हर बात का खूब सुनने वाला, जानने वाला है। अलबत्ता जो शख्स ये खौफ महसूस करे कि वसीयत करने वाले ने जानिबदारी या गुनाह का इर्तिकाब किया है, फिर वो आपस में सुलह करा दे तो उस पर कोई गुनाह नहीं। बेशक अल्लाह बड़ा बख्शने वाला, रहम करने वाला है। ए ईमान वालो, तुम पर रोजे का हुक्म लिख दिया गया है जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर लिख दिया गया था, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। ये रोजे गिनती के चंद दिन हैं। फिर अगर तुम में से कोई बीमार हो या सफर में हो तो दूसरे दिनों में मिकदार पूरी कर ले। और जो लोग रोजा रखने में मुशक्कत महसूस करते हैं
वो फिदिया दे जो एक मिस्कीन का खाना है। बस जो अपनी खुशी से नेकी करे तो उसके लिए बेहतर है, और अगर तुम समझो तो रोजा रखना तुम्हारे लिए बेहतर है। रमजान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, जो लोगों के लिए हिदायत है और ऐसे दलाइल पर मुश्तमिल है जो हिदायत और हक व बातिल में इम्तियाज करने वाले हैं। लिहाजा तुम में से जो शख्स इस महीने को पाए वो रोजा रखे, और जो बीमार और मुसाफिर हो वो दूसरे दिनों में मिकदार पूरी करे। अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है और तुम्हें मुशक्कत में डालना नहीं चाहता, और वो चाहता है कि तुम मिकदार पूरी करो। और अल्लाह ने तुम्हें जिस हिदायत से नवाजा है उस पर अल्लाह की अजमत व किबरियाई का इजहार करो, शायद तुम शुक्रगुजार बन जाओ। और जब मेरे बंदे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरे मुताल्लिक सवाल करे तो कह दे के मैं उनसे करीब हूं। दुआ करने वाला जब मुझे पुकारता है तो मैं उसकी दुआ कबूल करता हूं। बस उन्हें भी चाहिए कि वो मेरी दावत पर लब्बैक कहें और मुझ पर ईमान लाएं, ताकि वो राह रास्त पर रहें। और रोजों की रातों में अपनी बीवियों के पास जाना तुम्हारे लिए हलाल कर दिया गया है। वो तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम उनके लिए लिबास हो। अल्लाह ने देखा कि तुम अपने आप से खयानत कर रहे थे, बस अल्लाह ने तुम पर इनायत की और तुमसे दरगुजर फरमाया। बस अब तुम अपनी बीवियों से मुबाशरत करो, और अल्लाह ने जो तुम्हारे लिए मुकर्रर फरमाया है उसे तलाश करो, और रातों को खुर्दोनोश करो, यहां तक कि तुम पर फज्र की सफेद धारी रात की स्याह धारी से नुमाया हो जाए। फिर रात तक रोजे को पूरा करो, और जब तुम मसाजिद में एतकाफ की हालत में हो तो अपनी बीवियों से मुबाशरत ना करो। ये अल्लाह की मुकर्रर करदा हुदूद है, उनके करीब ना जाओ। इस तरह अल्लाह अपनी आयात लोगों के लिए बयान करता है ताकि वो तकवा इख्तियार करें। और तुम आपस में एक दूसरे का माल नाजायज तरीके से ना खाओ, और ना ही उसे हुक्काम के पास पेश करो, ताकि तुम्हें दूसरों के माल का कुछ हिस्सा दानिस्ता तौर पर नाजायज तरीके से खाने का मौका मयस्सर आए। लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चांद के घटने बढ़ने के बारे में पूछते हैं। कह दीजिए ये लोगों के लिए और हज के औकात के तायुन का जरिया है, और साथ ये भी कह दीजिए कि हज के एहराम बांधो तो पुश्त खाने से दाखिल होना कोई नेकी नहीं है, बल्कि नेकी तो ये है कि इंसान तकवा इख्तियार करे और तुम अपने घरों में दरवाजों से ही दाखिल हुआ करो और अल्लाह की नाराजगी से बचे रहो ताकि तुम फलाह पाओ। और तुम राह खुदा में उन लोगों से लड़ो जो तुमसे लड़ते हैं, और हद से तजावुज ना करो। अल्लाह तजावुज करने वालों को यकीनन दोस्त नहीं रखता। और उन्हें जहां कहीं भी पाओ कत्ल करो, और उन्हें निकालो जहां से उन्होंने तुम्हें निकाला है, और फितना कत्ल से भी ज्यादा बुरा है। हां, मस्जिदुल हराम के पास उनसे उस वक्त तक ना लड़ो जब तक वो वहां तुमसे ना लड़े, लेकिन अगर वो तुमसे लड़े तो तुम उन्हें मार डालो। काफिरों की ऐसी ही सजा है। अलबत्ता अगर वो बाज आ जाए तो यकीनन अल्लाह बड़ा माफ करने वाला, रहम करने वाला है। और तुम इनसे उस वक्त तक लड़ो कि फितना बाकी ना रहे और दीन अल्लाह ही के लिए हो जाए। हां, अगर वो बाज आ जाएं तो जालिमों के अलावा किसी के साथ ज्यादती ना होगी। हुर्मत वाले महीने का बदला हुर्मत का महीना ही है, और हुर्मतों का भी किसास है। लिहाजा जो तुम पर ज्यादती करे तो तुम भी इस पर इसी तरह ज्यादती करो जिस तरह इसने तुम पर ज्यादती की है, और अल्लाह से डरते रहो और जान लो कि अल्लाह परहेजगारों के साथ है।
اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور احسان کیا کرو. اللہ احسان کرنے والوں کو یقیناً پسند کرتا ہے. اور تم لوگ اللہ کے لیے حج اور عمرہ مکمل کرو. پھر اگر تم لوگ راستے میں گھر جاؤ تو جیسی قربانی میسر آئے کر دو، اور جب تک قربانی اپنے مقام پر پہنچ نہ جائے اپنا سر نہ مونڈو. لیکن اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو تو وہ روزوں سے یا صدقے سے یا قربانی سے فدیہ دے دے. پھر جب تمہیں امن مل جائے تو جو شخص حج کا زمانہ آنے تک عمرے سے بہرہ مند رہا ہو وہ حسب مقدور قربانی دے، اور جسے قربانی میسر نہ آئے وہ 3 روزے ایام حج میں رکھے اور 7 واپسی پر. اس طرح یہ پورے 10 روزے ہوئے. یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جن کے اہل و عیال مسجد الحرام کے نزدیک نہ رہتے ہوں. اور اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے. حج کے مقررہ مہینے ہیں، پس جو ان میں حج بجا لانے کا فیصلہ کر لے تو پھر حج کے دوران ہم بستری نہ ہو اور نہ فسق و فجور اور نہ لڑائی جھگڑا ہو، اور جو کار خیر تم کرو گے اللہ اسے خوب جان لے گا. اور زاد راہ لے لیا کرو کہ بہترین زاد راہ تقویٰ ہے. اور اے عقل والو میری نافرمانی سے پرہیز کرو. تم پر کوئی مذائقہ نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو. پھر جب تم عرفات سے چلو تو مشعر الحرام مزدلفہ کے پاس اللہ کو یاد کرو، اور اللہ کو اس طرح یاد کرو جس طرح اس نے تمہاری رہنمائی کی ہے، حالانکہ اس سے پہلے تم راہ گم کیے ہوئے تھے. پھر جہاں سے لوگ روانہ ہوتے ہیں تم بھی روانہ ہو جاؤ اور اللہ سے معافی مانگو. یقیناً اللہ بڑا معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے. پھر جب تم حج کے اعمال بجا لا چکو تو اللہ کو اس طرح یاد کرو جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کو یاد کیا کرتے ہو، یا اس سے بھی زیادہ. بس لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ دے دے، اور ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اور ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہمارے پالنے والے ہمیں دنیا میں بہتری اور آخرت میں بھی بہتری عطا کر، نیز ہمیں آتش جہنم سے بچا. ایسے لوگ اپنی کمائی کا حصہ پائیں گے اور اللہ بلا تاخیر حساب چکا دینے والا ہے. اور گنتی کے ان چند دنوں میں اللہ کو یاد کرو. پھر کوئی جلدی کر کے 2 ہی دن میں چلا گیا تو کوئی حرج نہیں، اور کچھ دیر زیادہ ٹھہرے تو بھی کوئی گناہ نہیں. یہ اس شخص کے لیے ہے جس نے پرہیز کیا ہے. اور اللہ کا خوف کرو اور جان لو کہ ایک دن اس کے حضور پیش کیے جاؤ گے. اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جس کی گفتگو دنیا کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند آئے گی، اور جو اس کے دل میں ہے اس پر وہ اللہ کو گواہ بنائے گا، حالانکہ وہ سخت ترین دشمن ہے. اور جب وہ لوٹ کر جاتا ہے تو سر توڑ کوشش کرتا پھرتا ہے کہ زمین میں فساد برپا کرے اور کھیتی اور نسل کو تباہ کر دے، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا. اور پھر جب اس سے کہا جائے خوف خدا کرو تو نخوت اسے گناہ پر آمادہ کر دیتی ہے. بس اس کے لیے جہنم ہی کافی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اور انسانوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کی رضا جوئی میں اپنی جان بیچ ڈالتا ہے، اور اللہ بندوں پر بہت مہربان ہے. اے ایمان لانے والو تم سب کے سب دائرہ امن و آشتی میں آ جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اور اگر ان سری نشانیوں کے تمہارے پاس آنے کے بعد بھی تم لڑکھڑا جاؤ تو جان رکھو کہ اللہ
बड़ा गालिब आने वाला बाहिकमत है। क्या ये लोग मुंतजिर हैं कि खुद अल्लाह बादलों के साइबान में उनके पास आए और फरिश्ते भी उतर आए और फैसला कर दिया जाए, जबकि सारे मामलात को अल्लाह ही के हुजूर पेश होना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी इसराइल से पूछें कि हमने उन्हें कितनी वाज़ेह निशानियां दी, और जो शख्स अल्लाह की नेमत पाने के बाद उसे बदल डाले तो अल्लाह यकीनन सख्त अजाब वाला है। जो काफिर हैं उनके लिए दुनिया की जिंदगी खुशनुमा बना दी गई है और वो दुनिया में मोमिनों का मजाक उड़ाते हैं, मगर अहले तकवा कयामत के दिन उनसे माफौक होंगे और अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ देता है। लोग एक ही दीन फितरत पर थे, उनमें इख्तिलाफ रोनुमा हुआ तो अल्लाह ने बशारत देने वाले और तंबीह करने वाले अंबिया भेजे और उनके साथ बरहक किताब नाजिल की, ताकि वो लोगों के दरमियान उन उमूर का फैसला करें जिनमें वो इख्तिलाफ करते थे, और उनमें इख्तिलाफ भी उन लोगों ने किया जिन्हें किताब दी गई थी, हालांकि उनके पास सरी निशानियां आ चुकी थीं। ये सिर्फ इसलिए कि वो आपस में एक दूसरे पर ज्यादती करना चाहते थे। बस अल्लाह ने अपने इज़्न से ईमान लाने वालों को इस अम्रे हक का रास्ता दिखाया जिसमें लोगों ने इख्तिलाफ किया था, और अल्लाह जिसे चाहता है सीधा रास्ता दिखाता है। क्या तुम ख्याल करते हो कि यूं ही जन्नत में दाखिल हो जाओगे, हालांकि अभी तुम्हें इस किस्म के हालात पेश नहीं आए जो तुमसे पहलों को पेश आए थे। उन्हें सख्तियां और तकालीफ पहुंची और वो इस हद तक झंझोड़े गए कि वक्त का रसूल और उसके मोमिन साथी पुकार उठे कि आखिर अल्लाह की नुसरत कब आएगी। उन्हें बशारत दे दी गई कि देखो अल्लाह की नुसरत अनकरीब आने वाली है। लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं क्या खर्च करें? कह दीजिए जो माल भी खर्च करो अपने वालिदैन, करीब तरीन रिश्तेदारों, यतीमों, मिस्कीनों और मुसाफिरों पर खर्च करो, और जो कार खैर तुम बजा लाओगे यकीनन अल्लाह उससे खूब बाखबर है। तुम्हें जंग का हुक्म दिया गया है जबकि वो तुम्हें नागवार है, और मुमकिन है कि एक चीज तुम्हें नागवार गुजरे मगर वही तुम्हारे लिए बेहतर हो, जैसा कि मुमकिन है एक चीज तुम्हें पसंद हो मगर वो तुम्हारे लिए बुरी हो। इन बातों को खुदा बेहतर जानता है और तुम नहीं जानते। लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माहे हराम में लड़ाई के बारे में पूछते हैं। कह दीजिए इसमें लड़ना संगीन बुराई है, लेकिन राह खुदा से रोकना, अल्लाह से कुफ्र करना, मस्जिदुल हराम का रास्ता रोकना और हरम के बाशिंदों को वहां से निकालना अल्लाह के नजदीक ज्यादा संगीन जुर्म है। और फितना अंगेजी खूरेजी से भी बड़ा गुनाह है, और वो तुमसे लड़ते रहेंगे यहां तक कि अगर उनसे हो सके तो वो तुम्हें तुम्हारे दीन से फेर दे, और तुम में से जो अपने दीन से फिर जाएगा और कुफ्र की हालत में मरेगा, ऐसे लोगों के आमाल दुनिया और आखिरत दोनों में अकारत होंगे, और ऐसे लोग अहले जहन्नुम हैं, वो हमेशा उसमें रहेंगे। बेशक जो लोग ईमान लाए नीज जिन्होंने राह खुदा में हिजरत की और जहाद किया, वो अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार हैं, और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला रहम करने वाला है। लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शराब और जुए के बारे में पूछते हैं। कह दीजिए इन दोनों के अंदर अजीम गुनाह है और लोगों के लिए कुछ फायदे भी, मगर इन दोनों का गुनाह इनके फायदे से कहीं ज्यादा है। और ये लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं कि क्या खर्च करें? कह दीजिए जो जरूरत से ज्यादा हो। इस तरह अल्लाह अपनी निशानियां तुम्हारे लिए खोल कर बयान फरमाता है ताकि तुम सोचो दुनिया और आखिरत के बारे में।
اور یہ لوگ آپ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यतीमों के बारे में पूछते हैं। कह दीजिए, इनकी इस्लाह बहुत अच्छा काम है, और अगर तुम इनसे मिलजुल कर रहो तो इसमें कोई मुजायका नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारे भाई हैं, और अल्लाह खूब जानता है कि मुफसिद कौन है और मुस्लिह कौन है। और अगर अल्लाह चाहता तो तुम्हें तकलीफ में डाल देता। यकीनन अल्लाह बड़ा गालिब आने वाला, हिकमत वाला है। और तुम मुशरिक औरतों से निकाह ना करो जब तक वो ईमान ना ले आए, क्योंकि मोमिना लौंडी मुशरिक औरत से बेहतर है, अगरचे वो तुम्हें बहुत पसंद हो। नीज मोमिना औरतों को मुशरिक मर्दों के अख्ब में ना देना जब तक वो ईमान ना ले आए, क्योंकि एक मोमिन गुलाम मुशरिक मर्द से बेहतर है, ख्वाह वो मुशरिक तुम्हें पसंद हो, क्योंकि वो जहन्नुम की तरफ बुलाते हैं, और अल्लाह अपने हुक्म से जन्नत और मग़फ़िरत की तरफ बुलाता है, और अपनी निशानियां लोगों के लिए खोल कर बयान करता है, शायद कि वो नसीहत हासिल करें। और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हैज के बारे में पूछते हैं। कह दीजिए, ये एक गंदगी है, बस हैज के दिनों में औरतों से किनारा कश रहो, और जब तक वो पाक ना हो जाएं उनके करीब ना जाओ। बस जब पाक हो जाएं तो उनके पास इस तरह जाओ जिस तरीके से अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दे रखा है। बेशक खुदा तौबा करने वालों को दोस्त रखता है, और पाक साफ रहने वालों को दोस्त रखता है। तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेतियां हैं, बस अपनी खेती में जिस तरह चाहो जा सकते हो। नीस अपने लिए नेक आमाल आगे भेजो, और अल्लाह के अजाब से बचो, और याद रखो तुम्हें एक दिन उसकी बारगाह में हाजिर होना है। और ए रसूल, ईमानदारों को बशारत सुना दो, और अल्लाह को अपनी उन कस्मों का निशाना मत बनाओ जिनसे नेकी करने, तकवा इख्तियार करने और लोगों में सुलह आश्ती कराने से बाज रहना मकसूद हो। और अल्लाह सब कुछ खूब सुनने वाला, जानने वाला है। अल्लाह उन कस्मों पर तुम्हारी गिरफ्त नहीं करता जो तुम बेतवज्जोही में खाते हो। हाँ, जो कस्में तुम सच्चे दिल से खाते हो उनका मुआखजा होगा, और अल्लाह खूब दरगुजर करने वाला, बुर्दबार है। जो लोग अपनी औरतों से अलग रहने की कसम खाते हैं उनके लिए 4 माह की मोहलत है। अगर इस दौरान रुजू करें तो अल्लाह यकीनन बड़ा माफ करने वाला, रहम करने वाला है। और अगर तलाक का फैसला कर लें तो अल्लाह यकीनन खूब सुनने वाला, इल्म वाला है। और तलाक याफ्ता औरतें 3 मर्तबा माहवारी से पाक होने तक इंतजार करें, और अगर वो अल्लाह और रोजे आखिरत पर ईमान रखती हैं तो उनके लिए जायज नहीं कि अल्लाह ने उनके रहम में जो कुछ खल्क किया है उसे छुपाएं। और उनके शौहर अगर इस्लाह व साज़गारी के ख्वाह हैं तो इद्दत के दिनों में उन्हें फिर अपनी ज़ौजियत में वापस लेने के पूरे हकदार हैं। और औरतों को दस्तूर के मुताबिक वैसे ही हुकूक हासिल हैं जैसे मर्दों के हुकूक उन पर है। अलबत्ता मर्दों को औरतों पर बरतरी हासिल है, और अल्लाह बड़ा गालिब आने वाला, हिकमत वाला है। तलाक 2 बार है, फिर या तो शाइस्ता तौर पर औरतों को अपनी ज़ौजियत में रख लिया जाए या अच्छे पैराए में उन्हें रुखसत किया जाए। और ये जायज नहीं कि जो कुछ तुम उन्हें दे चुके हो उसमें से कुछ वापस ले लो, मगर यह कि जनो शौहर को खौफ हो कि वो अल्लाह की हुदूद को कायम नहीं रख सकेंगे। बस अगर तुम्हें यह खौफ हो कि ज़ौजैन अल्लाह की हुदूद को कायम नहीं रख सकेंगे तो ज़ौजैन के लिए उस माल में कोई मुजायका नहीं जो औरत बतौर मुआवजा दे दे। ये अल्लाह की मुकर्रर करदा हुदूद है, सो इनसे तजावुज ना करो। और जो लोग हुदूद इलाही से तजावुज करते हैं बस
वही जालिम है। अगर तीसरी बार फिर तलाक दे दी तो वो औरत उसके लिए उस वक्त तक हलाल ना होगी जब तक किसी दूसरे शख्स से निकाह ना कर ले। हां, अगर दूसरा खाविंद तलाक दे और औरत और मर्द दोनों एक दूसरे की तरफ रुजू करें तो कोई हरज नहीं, बशर्ते कि उन्हें उम्मीद हो कि वो हुदूद इलाही को कायम रख सकेंगे, और ये हैं अल्लाह की मुकर्रर करदा हुदूद जिन्हें अल्लाह दानिशमंदों के लिए बयान करता है। और जब तुम अपनी औरतों को तलाक दे दो और वो अपनी इद्दत पूरी कर लें तो उन्हें या तो शाइस्ता तरीके से निकाह में रखो या शाइस्ता तौर पर रुखसत कर दो, और सिर्फ सताने की खातिर ज्यादती करने के लिए उन्हें रोके ना रखो। और जो ऐसा करेगा वो अपने आप पर जुल्म करेगा। और तुम अल्लाह की आयात का मजाक ना उड़ाओ, और अल्लाह ने जो नेमत तुम्हें अता की है उसे याद रखो, और ये भी याद रखो कि तुम्हारी नसीहत के लिए उसने तुम पर किताब और हिकमत नाजिल की। और अल्लाह से डरो और ये जान लो कि अल्लाह को हर चीज का इल्म है। और जब तुम अपनी औरतों को तलाक दे चुको और इनकी इद्दत पूरी हो जाए तो इन्हें अपने मुजव्विजा शौहरों से निकाह करने से ना रोको जबकि वो जायज तौर पर इस दिवाज पर बाहम राजी हों। ये नसीहत इस शख्स के लिए है जो तुम में से खुदा और रोज़े आखिरत पर ईमान रखता है। तुम्हारे लिए निहायत शाइस्ता और पाकीज़ा तरीका यही है, और इन बातों को अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। और माएं अपने बच्चों को पूरे 2 साल दूध पिलाएं। यह हुक्म इन लोगों के लिए है जो पूरी मुद्दत दूध पिलवाना चाहते हैं, और बच्चे वाले के जिम्मे दूध पिलाने वाली माओं का रोटी कपड़ा मामूल के मुताबिक होगा। किसी पर इसकी गुंजाइश से ज्यादा बोझ नहीं डाला जाता। बच्चे की वजह से न मां को तकलीफ में डाला जाए और न बाप को इस बच्चे की वजह से कोई जरर पहुंचाया जाए, और इसी तरह की जिम्मेदारी वारिस पर भी है। फिर अगर तरफेन बाहमी रजामंदी और मशवरे से बच्चे का दूध छुड़ाना चाहते हैं तो इसमें इन पर कोई मुजायका नहीं है। नीज अगर तुम अपनी औलाद को किसी से दूध पिलवाना चाहो तो तुम पर कोई मुजायका नहीं, बशर्ते कि तुम औरतों को मामूल के मुताबिक तयशुदा मुआवजा अदा करो और अल्लाह का खौफ करो, और जान लो कि तुम्हारे आमाल पर अल्लाह की खूब नजर है। और तुम में से जो वफात पा जाएं और बीवियां छोड़ जाएं तो वो बीवियां 4 माह 10 दिन अपने आप को इंतजार में रखें। फिर जब उनकी इद्दत पूरी हो जाए तो दस्तूर के मुताबिक अपने बारे में जो फैसला करें उसका तुम पर कुछ गुनाह नहीं, और अल्लाह तुम्हारे आमाल से खूब बाखबर है। और इसमें कोई मुजायका नहीं कि तुम उन औरतों के साथ निकाह का इजहार इशारे कनाए में करो या इसे तुम अपने दिल में पोशीदा रखो। अल्लाह को तो इल्म है कि तुम उनसे जिक्र करोगे, मगर उनसे खुफिया कौल करार ना करो। हां, अगर कोई बात करना है तो दस्तूर के मुताबिक करो, अलबत्ता अख्द का फैसला उस वक्त तक ना करो जब तक इद्दत पूरी ना हो जाए। और जान रखो जो कुछ तुम्हारे दिलों में है अल्लाह को सब मालूम है, लिहाजा उससे डरो और जान रखो कि अल्लाह बड़ा बख्शने वाला बुर्दबार है। इसमें कोई मुजायका नहीं कि तुम औरतों को हाथ लगाने और मेहर मुअय्यन करने से कब्ल तलाक दे दो। इस सूरत में उन्हें कुछ देकर रुखसत करो। मालदार अपनी वसत के मुताबिक और गरीब आदमी अपनी वसत के मुताबिक ये खर्च दस्तूर के मुताबिक दे। ये नेकी करने वालों पर एक हक है। और अगर तुम औरतों को हाथ लगाने से कब्ल और उनके लिए मेहर मुअय्यन कर चुकने के बाद तलाक दो तो इस सूरत में तुम्हें अपने मुकर्रर करदा मेहर का निस्फ अदा करना होगा, मगर यह कि वो अपना हक छोड़ दे या जिसके हाथ में अख्द की गिरा है वो हक छोड़ दे। और तुम्हारा छोड़ देना तकवा से ज्यादा करीब है, और तुम आपस की एहसान
कोशी ना भूलो। यकीनन तुम्हारे अमाल पर अल्लाह की खूब निगाह है। नमाजों की मुहाफ़ज़त करो, खुसूसन दरमियानी नमाज की, और अल्लाह के हुजूर खुजू के साथ खड़े हो जाओ। फिर अगर तुम हालत खौफ में हो तो पैदल हो या सवार, जिस हाल में हो नमाज पढ़ लो। और जब तुम्हें अमन मिल जाए तो अल्लाह को इसी तरह याद करो जिस तरह इसने तुम्हें वो कुछ सिखाया है जिसे तुम पहले नहीं जानते थे। और तुम में से जो वफात पा जाएं और बीवियां छोड़ जाएं, इन्हें चाहिए कि वो अपनी बीवियों के बारे में वसीयत कर जाएं कि 1 साल तक इन्हें नानो नफका से बहरामंद रखा जाए और घर से ना निकाली जाए। बस अगर वो खुद घर से निकल जाएं तो दस्तूर के दायरे में रहकर वो अपने लिए जो फैसला करती हैं, तुम्हारे लिए इसमें कोई मुजायका नहीं है, और अल्लाह बड़ा गालिब आने वाला, हिकमत वाला है। और मुतल्लका औरतों को दस्तूर के मुताबिक कुछ खर्चा देना, ये मुत्तकी लोगों की जिम्मेदारी है। अल्लाह अपनी निशानियां तुम्हारे लिए इस तरह खोलकर बयान फरमाता है ताकि तुम अक्ल से काम लो। क्या आपने इन लोगों के हाल पर नजर नहीं की जो मौत के डर से हजारों की तादाद में अपने घरों से निकले थे? अल्लाह ने इनसे फरमाया, मर जाओ, फिर इन्हें जिंदा कर दिया। बेशक अल्लाह लोगों पर बड़ा फजल करने वाला है, मगर अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। और राह खुदा में जंग करो और जान लो कि अल्लाह खूब सुनने वाला, जानने वाला है। कोई है जो अल्लाह को कर्ज़े हसना दे ताकि अल्लाह इसे कई गुना ज्यादा दे? अल्लाह ही घटाता और बढ़ाता है, और इसी की तरफ तुम्हें पलट कर जाना है। क्या आपने मूसा के बाद बनी इसराइल की एक जमात को पेश आने वाले हालात पर नजर नहीं की, जिसने अपने नबी से कहा, आप हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर करें ताकि हम राह खुदा में जंग करें? नबी ने कहा, ऐसा ना हो कि तुम्हें जंग का हुक्म दिया जाए और फिर तुम जंग ना करो। कहने लगे, हम राह खुदा में जंग क्यों ना करें, जबकि हम अपने घरों से निकाले गए और अपने बच्चों से जुदा किए गए हैं। लेकिन जब इन्हें जंग का हुक्म दिया गया तो इनमें से चंद अशखास के सिवा सब फिर गए, और अल्लाह जालिमों को खूब जानता है। और इनके पैगंबर ने इनसे कहा, अल्लाह ने तुम्हारे लिए तालूत को बादशाह मुकर्रर किया है। कहने लगे, इसे हम पर बादशाही करने का हक कैसे मिल गया, जबकि हम खुद बादशाही के इससे ज्यादा हकदार हैं, और वो कोई दौलतमंद आदमी तो नहीं है। पैगंबर ने फरमाया, अल्लाह ने तुम्हारे मुकाबले में इसे मुंतखब किया है और इसे इल्म और जिस्मानी ताकत की फरावानी से नवाजा है, और अल्लाह अपनी बादशाही जिसे चाहे इनायत करे, और अल्लाह बड़ी वसअत वाला दाना है। और इनसे इनके पैगंबर ने कहा, इसकी बादशाही की अलामत यह है कि वो संदूक तुम्हारे पास आएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे सुकून और इत्मीनान का सामान है, और जिसमें आले मूसा व हारून की छोड़ी हुई चीजें हैं, जिसे फरिश्ते उठाए हुए होंगे। अगर तुम ईमान वाले हो तो यकीनन इसमें तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है। जब तालूत लश्कर लेकर रवाना हुआ तो इसने कहा, अल्लाह एक नहर से तुम्हारी आजमाइश करने वाला है, बस जो शख्स इसमें से पानी पी ले वो मेरा नहीं, और जो इसे ना चखे वो मेरा होगा, मगर यह कि कोई सिर्फ एक चुल्लू अपने हाथ से भर ले तो कोई मुजायका नहीं। बस थोड़े लोगों के सिवा सबने इस नहर में से पानी पी लिया। बस जब तालूत और इसके ईमान वाले साथी नहर पार हो गए तो उन्होंने तालूत से कहा, आज हम में जालूत और उसके लश्कर का मुकाबला करने की ताकत नहीं है। मगर जो लोग ये यकीन रखते थे कि इन्हें खुदा के रूबरू होना है, वो कहने लगे, बसा औकात एक कलील जमात ने खुदा के हुक्म से बड़ी जमात पर फतह हासिल की है, और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और जब वो जालूत और उसके लश्कर के मुकाबले पर निकले तो कहने लगे,
परवरदिगारा, हमें सब्र से लबरेज फरमा, हमें साबित कदम रख और कौम कुफ्फार पर हमें फतह याब कर। चुनाचे अल्लाह के इज़्न से उन्होंने काफिरों को शिकस्त दी और दाऊद ने जालूत को कत्ल कर दिया और अल्लाह ने इन्हें सल्तनत व हिकमत अता फरमाई और जो कुछ चाहा इन्हें सिखा दिया। और अगर अल्लाह लोगों में से बास का बास के जरिए दिफा ना फरमाता रहता तो जमीन में फसाद बर्पा हो जाता, लेकिन अहले आलम पर अल्लाह का बड़ा फजल है। ये हैं अल्लाह की आयात जिन्हें हम हक के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तिलावत करते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीनन मुरसलीन में से हैं।